Hello, dear students. So, before starting exercise 3.3, we will discuss divisibility rule. So, first, divisibility by 2. So, a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6, or 8 in its ones place. It means you have to see only ones place of the number. Then you can check if the number is divisible by 2 or not. So see example. So example is 28. So we are taking example 28. See its ones place. So this is ones place and digit is 8. It means 28 is divisible by 2. You can check it also. You divide 28 by 2. So 2 1 ja 2. Here 0. Then this 8 here will come. Then 2 4 ja 8. So see here remainder is 0. It means 28 is divisible by 2. See one more example. 2, 3, 4, 4. So see here it ones place. So ones place digit is 4. So 2344 is divisible by 2. You can divide it by 2 and you can change it. Now divisibility by 10. So if a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. So see one example. 1110. So see its ones place digit is 0. So it is divisible by 10. You can check it also. 1110 10. So 10 1 ja 10. Here 1 will come, this one. This is 11. 10 1 ja 10. Minus it, 1 will come here, then this 0. So it becomes 10. So 10 1 ja 10. So minus 10. So remainder is 0. So see here 1110 is divisible by 10. Now divisibility by 11. Find the difference between the sum of the digits at odd places from the right side and the sum of the digits at even places from the right side of the number. If the difference is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. See example. So firstly I have to find the sum of the digits at odd places from the right side. So see this is odd place digit 9, 8 and 6, because this place is 1, this is 3, this is 2, 4, 5. So sum of the digits at odd places. So 9 plus 8 plus 6. So 6 plus 8 14, 14 and this 23. 23. Now we have to find the sum of the digits at even places. Sum of the digits at
even places. So this is even place digit 0 and 1. 0 plus 1 is equal to 1. Now you find the difference of sum of the odd places digit and sum of the even places digit. So sum of the odd places digit is 23 and sum of the even places digit is 1. Then difference is 22 and 22 is divisible by 11. 11 2 ja 22. So it means 61,809 is divisible by 11. You divide it and check it. Divisibility rule मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कोई नंबर यदि डिविजिबल है तो बिना डिवाइड किए आप कैसे जानेंगे कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो रूल क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो एक एग्जांपल एक समझते हैं। एग्जांपल आपका है 2031 2031। तो इसमें क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, इन सभी डिजिट्स का सम। तो प्लस कर लेते हैं 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3, तो टोटल कितना आएगा 6 आएगा। अब इसमें देखना है कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। मल्टीपल मतलब 3 से 6 जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, मतलब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यदि सम सम कितना आया है 6 आया है, तो यदि 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। सो अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4 इफ फाउंड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। तो कैसे चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 624। इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 2 और 4 है, मतलब 24। तो 24 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 24 जो है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो होता है, 4 6 24, आंसर क्या आएगा 6 आएगा, मतलब जो 24 है 6 से डिविजिबल है। तो यदि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर जो मेन नंबर वो ही 4 से डिविजिबल होगा। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 624 को आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल मतलब टोटली डिवाइड हो जाना, रिमाइंडर 0 आना, ठीक है। चेक करते हैं, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ इस ये 2 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 22। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा आपका 20, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, फिर ये 4 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 24। तो 4 6 जा 24। देखिए लास्ट में जो रिमाइंडर है वो क्या आया 0 आया, मतलब ये 624 4 से डिविजिबल है। बट हमें यहाँ चेक करना है विदाउट डिवाइड किए, इसलिए ये रूल्स को माइंड में रखना जरूरी है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं। अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 5। यदि कोई नंबर के वंस प्लेस में, वंस प्लेस मीन्स राइट साइड से फर्स्ट डिजिट 5, यहाँ क्या है 0,
यदि कोई भी नंबर है जिसकी वंस प्लेस में 0 है या कि 5 है, तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं 1,25,000। देखिए 25 में जो फर्स्ट डिजिट क्या है? 5। वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 5 है। तो 25 जो है 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25। सो इसमें कह सकते हैं कि 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है। यदि इसको आप 625 लेना चाहें तो 625 भी आप ले सकते हैं। आपको देखना केवल वंस डिजिट। इसमें लेना 620 तो 620 भी आप ले सकते हैं। तो 620 यदि मान लीजिए नंबर है, तो हमको केवल क्या देखना है? वंस प्लेस डिजिट देखना। तो वंस में क्या है? 0 है। तो सीधी सी बात, यदि 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाई 6। यदि कोई भी नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 12। 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल हो जाता है। 12 लेते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 12 भी 3 से कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो जब 12 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजन हो। कैसे? 6 2 जा 12, 6 की टेबल में 12 आता है। यदि 2 और 3 से कट जाता है तो वो 6, 2 और 3 से कट जाता है तो 6 से भी कैंसिल हो जाएगा वो नंबर। ऐसे हम चेक कर लेंगे कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कैसे डिवाइड होता है बिना डिवाइड किए हुए। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8 में। So, a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8। यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। इसके लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। 73,512 लेते हैं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 3 डिजिट 512, मतलब 512 जो है लास्ट की 3 डिजिट है। अब इनको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल मतलब लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए डिवाइड करने पर। तो 512 यदि 8 से डिविजिबल है तो जो मेन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप पता लगा सकते हैं बिना डिवाइड किए कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। कैसे? इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए 8 से कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 8 से डिविजिबल है। देखना है तो आप देख सकते हैं। 512 8, तो 8 6 जा 48, माइनस करिए कितना आएगा? 3। अब ये 2 आपका नीचे आएगा, ये हो जाएगा 32। 8 4 जा 32। तो यहाँ माइनस करके देखिए क्या आ रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आ रहा? 0। तो 512 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसलिए जो मेन नंबर है 73,512 भी 8 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। ये 3 जैसे ही है। जो रूल 3 में था वही रूल इसमें भी है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स, सभी डिजिट्स का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो मेन नंबर भी 9 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 4608। तो इसमें आपको सभी डिजिट्स का सम करना है। 4 + 6 + 0 + 8 कितना आ रहा है? 18। 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। 9 2 जा 18। इसलिए जो मेन नंबर है 4608 इज डिविजिबल बाई 9। तो जो मेन नंबर वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आज ये आप डिजिटल रूल पढ़िए सभी, इनको आपको लर्न करना है और नोट्स भी बनाते जाना है।